Dear brothers and sisters in the Lord, प्यारे भाई और बहनों, and in many places, many of the young people they used to ask a question. कई जगहों पर जवान लोग एक प्रश्न पूछते हैं। I spoke in hundreds of meetings, वो सभाओं में मैंने वचन दिया हूँ। and many young people in many meetings they will ask this question. वो सारे जवान लोग जवानों की मीटिंग में ये प्रश्न पूछते हैं। What is that question? ये कौन सा प्रश्न है ये? They ask, dear brother, God is an all-knowing God, भाई हमारा परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, and why He created Satan? तो फिर शैतान को क्यों बनाया? Good angels are there okay? अच्छे दूत है, ठीक है वो तो, Why this bad Satan God created? लेकिन ये जो बुरा शैतान इसको क्यों बनाया? God knows very well because He is an all-knowing God. Satan is going to rebel against Him. परमेश्वर सब कुछ जानता है, जानने वाला है, और आने वाले दिन में शैतान ने और मेरे विरोध में उठ खड़ा होगा ये भी जानता है। And also He is the cause for all the problems we have today. और आज के दिन जो समस्या हम देख रहे हैं इस सब की वजह वही है। So the question is, ये प्रश्न ये है, why did God create Satan knowing he would rebel against Him? परमेश्वर ने क्यों शैतान को बनाया? ये अच्छी तरह जानता था कि ये एक दिन मेरे विरोध में होगा, फिर भी उसको क्यों बनाया? So this is the question. ये प्रश्न है, Why did God create Satan? परमेश्वर क्यों शैतान को बनाया? So we want to see from the scriptures a little bit about that. अब हम वचन में से कुछ बातों को हम देखेंगे। First of all, we are going to see who was he in Isaiah 14 chapter. अब पहली बार हम देखेंगे कौन था वो शैतान। यशायाह की किताब के 14 अध्याय से हम देखेंगे। Yeah, in the beginning, what was he? आरंभ में वो क्या था? In chapter 14, 14 अध्याय in के verse 12 and 13, it is written, 12 और 13 वचन में ऐसा लिखा है, or even up to 14. फिर तो 14 वचन तक भी हम देखेंगे। How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which did weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of congregation and in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. 12 to 15. 12 से फिर हम 15 वचन तक हम पढ़ेंगे। हे भोर के चमकने वाले तारों, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतरा जाएगा। Also one more portion from Ezekiel chapter 28. एहेजकेल की किताब के 28 अध्याय में से एक और भाग भी हम पढ़ेंगे, And in relation to Satan. और ये शैतान के सिलसिले में। So 12th verse. 12 वचन 28:12 from the middle. एहेजकेल 28 अध्याय 12 वचन के बीच में वाली भाग में हम पढ़ेंगे। Thus saith the Lord God, thou sealest up the sum full of wisdom and perfect in beauty. Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, and the beryl, and the onyx, and the jasper, and the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold. The workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou was created. Thou art the anointed cherub that covereth, and I have set there so. And thou was upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Up to 14. 14 वचन तक हम पढ़ेंगे। 12th middle. 12 वचन के बीच वाले भाग से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वर्गीय सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण माणिक पधारगा, हीरा फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल
सब भांति के मणि और सोने के पहराव थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार ही गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सिरखों चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। In your leisure time, read up to verse 19. जब आपको थोड़ा खाली समय मिलता है तो ये 19 वचन तक आप पढ़ लीजिए। So now these two portions are related to Lucifer and later turned to Satan. तो यहाँ के जो ये दो भाग है लूसीफर के सिलसिले में, जो बाद में वो शैतान बन गया था, उसके बारे में लिखा है। When we see the creation जब हम सृष्टि पर नजर लगाएंगे, in Genesis 1:1, उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय पहले वचन में we read that God, in the beginning, God created heavens and earth. आदि में परमेश्वर ने भूमि और आकाश की सृष्टि की है। We all know God is without beginning. हम सब जानते हैं परमेश्वर का कोई आदि नहीं होता So है। what I believe is, तो मेरा मानना ये है, in the beginning, God created the heavens. और आदि में परमेश्वर ने आकाश को बनाया। I think that this is the first part of his creation. ये उसकी सृष्टि का ये पहला भाग है। And secondly, दूसरी बात, after creating heaven, he created the heavenly beings. आकाश को बनाने के बाद आकाश में रहने वालों को बनाया। We can see the same sequence in the earth also. हम इस जमीन पर भी उसी प्रकार के क्रम को हम देखते हैं। After creating earth, then he created the things of the earth. और पृथ्वी को बनाने के बाद पृथ्वी में रहने वाले इनको बनाया है। So first he created heavens, तो पहले आकाश को बनाया and after that the heavenly beings, और उसके बाद आकाश में रहने वालों को that बनाया। is mainly the angels, and different kinds of angels are there. उसका मतलब है दूत है और कई प्रकार के दूत है, स्वर्ग दूत है। That is seraphims are there, cherubims are there, सराफिम है, केरूबुम है, and mighty angels are there, great angels are there, और भी महान महान दूत है, बड़े बड़े दूत है, and ordinary angels are there. साधारण दूत भी है। Yeah, like our secretariat. और जैसे हमारा सेक्रेटरीट है, One chief secretary will be there. एक चीफ सेक्रेटरी होता है, Principal secretaries will be there. प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता And है, above them, special chief secretaries will be there. फिर उनके ऊपर स्पेशल चीफ सेक्रेटरी होता है, Secretaries will be और there. फिर सेक्रेटरी होती है, Deputy secretaries. डिप्यूटी सेक्रेटरी So होता है। all are having that word secretary, but cadres are different. तो सबके नाम के साथ सेक्रेटरी लगाया गया, लेकिन उनका पद अलग होता है। So in a similar way, उसी प्रकार से all are angels only, सबके साथ स्वर्गदूत है, but different cadres of angels. लेकिन अलग अलग जगहों में उनका स्थान अलग So अलग God है। created the heavens first, परमेश्वर ने पहले आकाश को बनाया, and after that the heavenly beings, the angels and the four beings and all the other things that are in heaven, we do not know much about it. और उसके बाद स्वर्गदूतों को और फिर वहां रहने वाले और बहुत सारी बातें हम नहीं जानते हैं, इनको बनाया। And now after that, और उसके बाद he में created the earth, पृथ्वी को बनाया, because at the time of the creation of the earth, angels were there singing, as we read in the book of Job. क्योंकि जिस समय पृथ्वी को बनाया था उस समय स्वर्गदूत वहां गीत गा रहे थे। ये बात हम अय्यूब की किताब में पढ़ So सकते what हैं। does it mean? तो इसका मतलब क्या When the है? Lord was laying foundation to the earth, जब परमेश्वर ने पृथ्वी को नींव डालते थे, and at that time the angels are already there. उस समय में स्वर्गदूत उससे पहले वहां पर थे। So what does it mean? और इसका मतलब क्या है? They are seniors to earth. मतलब ये लोग ये पृथ्वी से बड़े हैं। They are created before earth was created. पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही उनकी सृष्टि So हुई है। after he creating the earth, अब पृथ्वी को सृष्टि करने के बाद and then all the things of the earth, और उसके बाद पृथ्वी पर रहने वाले सबको बनाया। and he created light, अब रोशनी को बनाया, water, पानी को बनाया, or animals and all these things. जानवरों को और इन सारे सब चीजों को बनाया। Some people say और कुछ लोग बोलते on हैं the third day the earth is created. तीसरे दिन पृथ्वी की सृष्टि हुई है, But what Genesis says, लेकिन उत्पत्ति किताब में क्या लिखा it is है? not created on the third day. ये तीसरे दिन इसकी सृष्टि नहीं हुई है, But what is written there? लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? The earth appeared on the third day. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तीसरे दिन Verse 11. 11 No, वचन। no. So, who said see, even before that. उससे पहले भी हम देखेंगे Yeah. See, verse 9. 9 वचन में, And God said, let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear. भूमि दिखाई दी है, यहाँ पे लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल
एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। So और वैसा ही हो गया। it is not creation. इसका मतलब ये नहीं कि इसकी सृष्टि ये नहीं है, It is there already under the water. ये तो पहले से ही पानी के जल के नीचे मौजूद था। So when the waters are gathered in other place जब दूसरी जगहों पर पानी का इकट्ठा, जल का इकट्ठा हुआ था, and the dry land came to surface. अब सूखी हुई भूमि वहां पर ऊपर आई है। And then in verse 10, God called the dry land earth. और फिर 10 वचन में उसको परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। So that is how earth appeared. It was there. तो इसका मतलब यहाँ पर भूमि दिखाई दी, इसका मतलब है इससे पहले से भूमि वो मौजूद था। So earth was created in 1:1. तो भूमि पृथ्वी, ये पहला अध्याय पहले वचन में उसकी सृष्टि हुई है। And now it appeared. अभी क्या वो दिखाई दी है, In other words, दूसरे शब्दों में all कहें। these days it was under the water. और इन सारे दिनों में वो तो जल के नीचे मौजूद था। It was something like the days of Noah. ये जैसे नूह के दिनों में हुआ था उस प्रकार का। When the flood came, जल प्रलय आया the था whole earth was covered with water. तो धरती पूरा पानी से भरा हुआ था। Earth is not seen. Everywhere water is seen. हमको भूमि कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया, जहाँ कहीं भी हम देखते तो But केवल पानी दिखाई। slowly the waters receded. तो अब धीरे धीरे हो गया, पानी कम होता So था। in a similar way, उसी प्रकार से we do not know what has happened in the eternity past. और फिर हम सनातन काल से पहले क्या हो गया था हम नहीं जानते। Something like during the days of Noah, that earth was under the water. जैसे नूह के दिनों में था, भूमि पानी के नीचे स्थान में So था, this पानी is से how भरा। God created heaven, angels and earth. इस प्रकार से परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया, स्वर्गदूतों को बनाया, फिर पृथ्वी को बनाया। Now I wanted you to see 7 important things in relation to Saturn. अब ये शैतान के बारे में हम 7 महत्व देने वाली बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, So that we may understand why God created Saturn. ताकि हमको ये समझ में आए कि क्यों परमेश्वर ने शैतान को बनाया, Or has he created Saturn or not? या फिर परमेश्वर ने शैतान को बनाया है, शैतान की सृष्टि की है या नहीं। So let us see in detail. हम थोड़ा सा हम विवरण से उसका देखेंगे। Maybe it may be in 2 parts this study. हो सकता है ये अध्ययन 2 भाग में भी हो सकता है। So we are going to see. अभी हम उस पर मनन करेंगे। Number 1. पहली बात है, Number 1 is God did not create robots. पहली बात है परमेश्वर ने रोबो को नहीं सृजा। He has created either angels or us. स्वर्गदूतों को बनाया है या फिर मनुष्य को बनाया। What is the difference between robo and you? मनुष्य के और रोबो के बीच में अंतर क्या है? Robo is not having free will, but we are having free will. रोबो को अपना मन नहीं है उसको, लेकिन हमारे लिए स्वीय मन नहीं है, इच्छा नहीं है, लेकिन हमारे लिए स्वीय इच्छा है। How the robo will function? रोबो कैसे काम करता You है? have to give the program. उसको कोई प्रोग्राम लगाना What it होगा has to do, you have to tell. और उसको क्या करना है आपको बताना It है। will not take any decision. वो अपने आप से कोई निर्णय नहीं ले It सकता will है। follow the decision you took. जो आपने निर्णय लिया है उसके अनुसार वो काम करता And है। accordingly, you will program the robo. आप भी उसके अनुसार उसका रोबो का प्रोग्राम बना के There रखते are हैं। some robos who will sweep our floor. कुछ रोबो है ना, अपने वो झाड़ू सफाई करते हैं, Some robos are there which wash our vessels. और कुछ रोबो है ना हमारे बर्तन को भी साफ करते हैं, And some robos are there which will bring tea to us. और कुछ रोबो ऐसे हमारे लिए वो चाय को बना के In रखते some of the big lodges, the robos are there. From the counter, from the hotel, they will send the tea, and that robo will bring that tea to our room. हैं। बड़े बड़े होटल में है ना, वहाँ पर वो काउंटर से रोबो के साथ में वो लोग चाय है, जो भी खाने के पदार्थ है उसको बेचते हैं। Some robos they will send even into the tunnels in the recent wars we have seen, अभी कुछ रोबो है ना, वो टनल्स के अंदर भी उसको भेजते हैं, and to search what is there, to take photographs and send. और उस टनल में क्या है, सुरंग में क्या रखा हुआ है, और उसकी फोटो, उसकी छाया लेकर हमको भेजते So हैं। from all these things, what can we understand? तो इन सारे बातों से हमको क्या समझ में आता है? Robos are not having free will. They cannot take the decision of their own. रोबो को अपनी स्वीय इच्छा नहीं होती है, वो अपने आप से कुछ निर्णय नहीं ले They सकते। will work according to what we say, what program is there with which we fed that robo. वो तो इस पर काम करते हैं कि जो हमारे कहने पे, जो हम जो प्रोग्राम बनाते हैं उसके अनुसार ही रोबो काम करता है। So it is not having the ability to choose whether to obey or disobey.
तो अब उसकी ये सामर्थ्य नहीं है कि जो बात बताई जाती है क्या हम उसको कहना मानना है या नहीं मानना है, इसका निर्णय लेने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। The robot doesn't know what is good and what is evil. ये रोबो को अच्छा क्या है बुरा क्या है वो नहीं जानती है। If God takes away the free will and forces us to love Him, यदि परमेश्वर हमारे जीवन से स्वीय इच्छा को निकाल कर और फिर हम उससे प्रेम करने की जो हम पर वो जोर डालते हैं तो then it would not be love. तब वो प्रेम नहीं होता है। See, if you are forcing somebody to love you means when the other person is not loving, it is not love. देखिए ना, अगला व्यक्ति आप चाहते हैं कि वो आपको प्रेम करने के लिए आप उसके ऊपर दबाव डालते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं होता है। So God created human beings in His likeness and according to His image. तो फिर परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपने स्वभाव में मनुष्य को बनाया है। So God is having free will. परमेश्वर की स्वीय इच्छा है उसकी। God can do anything according to His own desire. परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार वो कुछ भी कर सकता है। Same power God has given to man also. और वही शक्ति को मनुष्य को भी दिया है So परमेश्वर। when God created angels also, He has created them with free will. जब परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया था उसको अपनी स्वीय इच्छा के साथ ही बनाया। That's why इसीलिए some of the angels, because of the free will, instead of siding God, they sided Lucifer. यहाँ पर कुछ स्वर्गदूत को ऐसा हुआ ना अपने स्वीय इच्छा के रहने के कारण से, और कुछ स्वर्गदूत ऐसा किया परमेश्वर के पास जाने से वो शैतान का कहना मान लिया, So लूसीफर का कहना मान now it is because of the free will. लिया। वजह यह है कि अपना स्वीय इच्छा, They can stand on the side of God, they can stand on the side of Lucifer. परमेश्वर के पक्ष में रह सकते हैं या फिर लूसीफर के पक्ष में रह सकते हैं। See, God said to Adam, परमेश्वर ने आदम से कहा don't eat the fruit of this forbidden tree. वो जो पेड़ है उसका फल आप नहीं खाना है। So it is up to Adam. वो आदम की मर्जी है, God has given the free will to Adam. क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अपनी स्वीय इच्छा दिया है। God will not force anybody. परमेश्वर किसी के ऊपर दबाव नहीं डालता है। So Adam, it is up to him whether to obey that command or disobey that अब ये command. आज्ञा का कहना मानना है या फिर नहीं मानना है, ये तो आदम उसकी मर्जी है। And Adam has taken the choice to disobey the word of God. लेकिन आदम परमेश्वर का कहना उसका अनाज्ञाकारी बनने का ही वो सोच लिया है। So in a similar way, और इसी प्रकार से God created the angels also with self will. परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अपनी स्वीय इच्छा के अनुसार ही बनाया। So they are having free will to choose whatever they want. जो कुछ भी चाहते हैं वो कर सकते हो, ऐसा स्वीय इच्छा उनको दिया है। God will say to them, you do this. It is up to them to do or not. परमेश्वर ने उनको ये काम आपको करना है वो बोलेंगे, लेकिन वो करना है या नहीं वो उनकी मर्जी है। So that is the first thing about the creation we have to understand. अब ये सृष्टि के बारे में हमको समझने वाली पहली बात So that है। is the creating humans and also the angels. अब ये मनुष्य की सृष्टि और फिर स्वर्गदूतों की सृष्टि करना है। So this is the first thing we have to understand, that God did not create robots. यहाँ पर हमको समझने वाली पहली बात है परमेश्वर ने रोबो को नहीं बनाया। And second thing is, दूसरी बात, the second question, दूसरा प्रश्न, why He created angels? स्वर्गदूतों को क्यों बनाया? To worship Him and to serve Him. उसकी उपासना करने, उसकी सेवकाई करने की। Hebrews इब्रानियों की पत्री chapter 1 पहला अध्याय verse 14. 14 वचन, Are they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? First chapter of Hebrews verse 14. इब्रानियों की किताब पहला अध्याय उसका 14 वचन से हम पढ़ेंगे। Last verse. अंतिम भाग में लिखा हुआ है, जो उद्धार पाने वालों क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? So they are created, angels are created to worship the Lord स्वर्गदूत परमेश्वर की उपासना करने के लिए बनाए गए and also to serve the Lord अब परमेश्वर की वो सेवकाई करने के and लिए, also to serve the people of God. अब परमेश्वर के लोगों की सेवा करने के लिए, Mainly service oriented. और यहाँ पे विशेष रूप से वो सेवा करने के लिए। Even some of the angels are messengers. कुछ स्वर्गदूत है वहाँ पर कुछ संदेश को भेजने As वाले I हैं। already told you, there are different cadres in the angels. पहले बताया था कि स्वर्गदूतों में अलग अलग पद में होते So हैं। some are messengers. Many times Michael or Gabriel, they are sent to different people like Mary or Daniel with a message. कुछ स्वर्गदूत है संदेश भेजने वाले, जैसे मिखाइल है, हम जैसे जानते हैं मरियम और दानियल, उनको जो संदेश भेजा था, गाब्रियल जैसा। So like that, some are
for message, as message. इसी प्रकार से कुछ स्वर्गदूत है संदेश भेजने वाले हैं Some people are guarding angels. और कुछ स्वर्गदूत है रखवाली करने वाले। Yeah, so see, when a believer is going, तब एक विश्वासी वो जाता है। yeah, some of the Muslims also believe कुछ मुसलमान लोग का भी उनका मानना ये है every saint will be given 2 angels to guard them. हर एक संत भक्त को उनकी रखवाली करने के लिए परमेश्वर 2 स्वर्गदूत को भेजता है। Just now we will see, as we see the MLAs or MPs or some ministers, some gunmen will be there beside them. जैसे कि हम देखते हैं ना एमएलए वो एमपी होता है, फिर कोई मंत्री है, उसके 2 गनमैन होते हैं। So like that, when the believers are going here and there, they will be there, these angels as guarding angels. इसी प्रकार से कभी विश्वास किस जगह पर जाता है तो उसके रखवाली के लिए 2 स्वर्गदूत होते हैं। So for the same purpose, God created Lucifer also. उसी उद्देश्य से परमेश्वर ने लूसीफर को भी बनाया, Just like other angels, जैसे बाकी स्वर्गदूत है उसी प्रकार to से worship the Lord, to serve Him. परमेश्वर की उपासना करने, उसकी सेवा करने Yeah, के this लिए। is the purpose of creating angels, including Lucifer. ये स्वर्गदूतों को बनाने का मकसद यह था, उसमें लूसीफर भी है। And thirdly, तीसरी बात, first we have seen that God did not create robots. पहली बात हमने देखा है परमेश्वर ने रोबो को नहीं बनाया। And secondly, why God created angels and also why God created Lucifer दूसरी also. बात, परमेश्वर ने क्यों स्वर्गदूत को बनाया फिर लूसीफर को भी बनाया। And the third thing about it is, अब इसके बारे में तीसरी बात, God did not create Satan. परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया, He created Lucifer as the son of the morning. और वो लूसीफर को उसने वो सुबह का पुत्र ऐसा बनाया उसका। So Lucifer is a very, very positive name. लूसीफर है वो एक बहुत सकारात्मक नाम Yeah, है, उसका Ezekiel. नाम है एजकेल की किताब Chapter में 28 28 अध्याय and verses 12 and 13. 12 और 13 वचन में, पढ़िए। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहा, परमेश्वर यहोवा ये कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वर्गीय सुंदर है। See, this is how God created तो Lucifer. इस प्रकार से परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया था। और पढ़ो। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण माणिक पदरा हीरा फिरोज सुलेमानी मणि यशब नीलमणि मरकत और लाल So सब भांति। with all this glory, God has created इस Lucifer. प्रकार इस महिमा में बनाया था लूसीफर को। But what has happened? लेकिन क्या हुआ, After the fall, after rebellion, और वो गिरने के बाद वो उसके विरोध में उठा था, and at that time, उस समय में he was given new names, that is Satan उसको नया नाम दिया गया, वो है शैतान or devil और फिर दुष्ट आत्मा करके or ऐसा, even deceiver. और फिर वो धोखा देने वाला So भी। what does it mean? तो इसका मतलब क्या है? God has not created Satan. God has created Lucifer as a glorious being. परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया, लूसीफर को बनाया था, एक महिमामय व्यक्ति बनाया था उसको। But because he disobeyed God, these names came. लेकिन परमेश्वर कहना नहीं मानता था तो ये नाम उसको दिया The गया। positive name is Lucifer and the negative name because of disobedience is Satan. उसका अच्छा नाम लूसीफर था, उसको बुरा नाम शैतान दिया क्योंकि वो उसका आज्ञा का नहीं मानता था। Because Lucifer exercised his free will to do evil than good. क्योंकि लूसीफर ने जो उसको स्वीय इच्छा दी गई थी उसको बुरा काम करने के लिए उपयोग किया, अच्छा काम करने के लिए नहीं किया। That's why the name of Lucifer is changed to Satan. इसीलिए लूसीफर का नाम शैतान में बदल गया। So God is not responsible for this evil. तो परमेश्वर ने इस बुराई का जिम्मेदार नहीं होता है। See, evil existed even before man's fall. ये जो बुराई है ना, ये मनुष्य गिरने से पहले भी बुराई थी। See, we all know in the Garden of Eden, Adam fell into sin अदन की वाटिका में हम जानते हैं आदम ने पाप में गिर गया था because of evil, क्योंकि बुराई की वजह से, because he disobeyed God. क्योंकि वो परमेश्वर का अनाज्ञाकारी So बन गया। evil is not started in the Garden of Eden. इसका मतलब ये जो बुराई है अदन की वाटिका में उसका आरंभ नहीं हुआ है। Evil existed before man's fall, man's creation. मनुष्य की सृष्टि से पहले ही बुराई वहां पर मौजूद थी। Because even before creation only, Lucifer was turned to Satan. क्योंकि सृष्टि से पहले ही लूसीफर ने शैतान बन गया। Why Lucifer became Satan? लूसीफर क्यों शैतान बना Yeah, है? Lucifer committed evil. क्योंकि लूसीफर ने बुराई की है।
angel plus evil is equal to devil. स्वर्गदूत उसके साथ में बुराई, ये शैतान बन गया। See, he is highly glorious being, Lucifer. ये तो लूसीफर बड़े महिमा में था वो। So God created Lucifer. God has not created Satan. परमेश्वर लूसीफर को बनाया लेकिन शैतान को नहीं बनाया। Lucifer became Satan out of his free will. अब लूसीफर जो अपनी ईश्वरीय इच्छा के अनुसार वो खुद शैतान बन गया। Then how can we blame God for that? तो फिर हम परमेश्वर पे दोष कैसा लगा सकते हैं? Mistake is done by, sin is by the Lucifer. शैतान तो लूसीफर गया, पाप तो लूसीफर किया है। See, Lucifer became Satan, as the commentators say, लूसीफर ने शैतान बन गया जैसे कमेंटेटर बताते हैं। between Genesis 1:1 and Genesis 1:2. उत्पत्ति किताब पहला अध्याय 1 और फिर 2 के बीच में Between those two verses, crores of years of time is there. 2 के बीच में करोड़ों साल का समय है वो। Some people will call it as a gap theory. और कुछ लोग उसको बोलते हैं, इसको गैप थियरी बोलते हैं। Why we are telling, why we are believing that? हम क्यों उसको मानते हैं? In Genesis 1:1, उत्पत्ति किताब पहला अध्याय पहला God वचन में created the heavens and the earth. परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। But verse 2, a very sad verse. लेकिन दूसरा वचन है, बहुत दुख का वचन है। What it is written there? वहाँ पर क्या लिखा In है? Genesis chapter 1 verse 2. उत्पत्ति किताब पहला अध्याय 2 वचन। And the earth was without form and void, and the darkness was upon the face of the deep. पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। So, why it has become like that? क्यों ऐसा हो गया है वो? Why it is without form and void? क्यों वो बेडौल था फिर सुनसान था? Has God created it like that? क्या परमेश्वर ने ऐसा रहने के लिए बनाया है No, इसको? not like that. नहीं, ऐसा तो नहीं। So, when we see in the book of Isaiah, यशायाह की किताब में हम ये and there it is written, God has not created the earth, I mean, without void. यहाँ लिखा है परमेश्वर ने बेडौल रहने के लिए इस पृथ्वी को नहीं बनाया। 45 अध्याय And में verse 18, 18 वचन 45:18 of Isaiah. यशायाह की किताब 45 अध्याय उसका 18 वचन। For thus saith the Lord that created the heavens, God himself that formed the earth and made it, and he hath established it. He created it not in vain, he formed it to be inhabited. I am the Lord, and there is none else. क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। So, even in the book of Jeremiah, और यिर्मयाह के किताब में भी and about mentioning the second verse of Genesis 1, ये उत्पत्ति किताब पहला अध्याय 2 वचन के बारे में प्रस्तुत करते हुए and Jeremiah 4:23, और यिर्मयाह 4 और 23 वचन में लिखा, and what it is written वहाँ there? पर क्या लिखा है? I beheld the earth, and lo, it was without form and void, and the heavens, they had no light. मैंने पृथ्वी पर देखा, वो सुनी और सुनसान पड़ी थी और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। So, what does it mean? तो यहाँ पर क्या लिखा है? Isaiah इसका मतलब is क्या है? telling God has created the earth with a form and a beautiful place to live. परमेश्वर ने क्या लिखा है उसको? Isaiah. एक रूप। यशायाह ने क्या लिखता है यहाँ पर, क्या बोलता है कि उसका एक रूप दिया गया है और बहुत सुंदर सा बनाया उसको। And also it was formed, earth was formed for the inhabitation. और फिर People may dwell. लोग वहाँ पर बसेरा करने के लिए वो बनाया गया था। But what has happened in verse 2? लेकिन दूसरे वचन में क्या हुआ है? So in Genesis 1:2, it lost its form. उत्पत्ति किताब पहला अध्याय 2 अध्याय में उसका दूसरा कोई वचन। दूसरे वचन में उसका कोई रूप नहीं था, And it lost its purpose. तो उसका उद्देश्य को खो गया है। What does it mean? इसका मतलब It क्या is है? totally spoiled. वो बिल्कुल पूरा खराब हो गया है। That's why the historians says, इसीलिए जो चरित्रकार लोग बोलते even in the हैं, beginning we read the verses from Isaiah and 14 and even Ezekiel 28 chapters. आरंभ में पढ़ा है यशायाह 14 अध्याय और फिर एजकेल के 28 अध्याय में भी हम पढ़े हैं। So in between the first verse and second verse of Genesis first chapter, उत्पत्ति किताब पहला अध्याय के पहले और दूसरे वचन के बीच में the rebellion in heaven has taken place. स्वर्ग राज में विरोध हो गया है। So Lucifer rebelled against God, the creator. लूसीफर जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर के विरोध उठ खड़ा। Now what does it mean?
इसका मतलब क्या है? Lucifer is a creation, it is a created being. लूसीफर है, सृष्टि है, उसकी सृष्टि की गई है। So now the Lucifer, that is the creation, rebelled against the creator. अभी सृष्टिकर्ता के विरोध उठ खड़ा। Now what the Lord has done? अब परमेश्वर ने क्या As I किया? already told you in the beginning, the angels were also given free will. जैसे मैं पहले ही बताया हूँ, स्वर्गदूतों को भी स्वीय इच्छा दी गई है, And they can take decisions. वो अपने आप से निर्णय ले सकते So हैं। almost 1/3 of the heavenly angels, they supported Lucifer. तो वो स्वर्ग राज में रहने वाले तीसरे भाग तक वो लूसीफर के पक्ष में हो गए। And also we know God is all powerful. हम सब जानते हैं परमेश्वर हमारा पूरा अधिकार है उसको। And now what has happened? अभी क्या हो गया The है? Lord has thrown them out of heaven. परमेश्वर उनको स्वर्ग से बाहर ढकेल दिया है। Heaven is the dwelling place of God. स्वर्ग राज्य परमेश्वर का निवास स्थान And है, even it is the dwelling place of the angels. अब इस स्वर्गदूतों का भी निवास स्थान है। Now they are thrown out of heaven. अभी उनको स्वर्ग से बाहर गिरा दिया। Now Lucifer was thrown out of heaven because of his rebellion. अभी लूसीफर वो विरोध हो गया था, इसीलिए उसको स्वर्ग से बाहर भेज दिया। And 1/3 of the angels who are the followers of Lucifer also thrown out of heaven. अभी जो लूसीफर के पक्ष में थे तीसरे भाग पूरा स्वर्ग वो लोग भी नीचे उनको फेंक दिया है। And they are reserved for hell. अब वो तो फिर वो नरक के लिए उनको रखा है। Oh, that is what is written in Matthew chapter 25. मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय में वही बात लिखा Hell है। is not for the you and me. नरक आपके लिए मेरे लिए नहीं है। God has created hell for the rebellious Satan and his followers. परमेश्वर ने नरक को शैतान के लिए और उनके लोग शैतान के लोगों के लिए बनाया है। So, but what we are doing? लेकिन फिर हम क्या कर रहे If we हैं? follow Satan, if we obey Satan, we also will go यदि there. हम शैतान का कहना मानेंगे तो हम भी वहीं पर जाएंगे। So here, what a wonderful thing it is. यहाँ क्या अद्भुत बात है ना। So here, Lucifer was thrown out to the earth. अब लूसीफर को जमीन पर उसको फेंक दिया। And wherever Lucifer goes, it will spoil the whole soup. फिर लूसीफर जहाँ कहीं भी जाता है वहाँ सबका सब खराब कर देता है। Till that time, earth was with a form and it was a beautiful inhabitable place. उस समय तक धरती अच्छा है, उसका एक रूप था और निवास के योग्य था वो। But after Lucifer came, लेकिन लूसीफर के आने के बाद and after those 1/3 of angels are fallen, और फिर स्वर्ग में जो तीसरा भाग दूत सब लोग नीचे गिर गए थे। then what has happened? तब क्या हो गया? They have spoiled the whole earth. और फिर सारी भूमि को उन लोग ने खराब How कर many दिया। lakhs of years we do not know. वो कितने लाखों साल तक था हम नहीं जानते हैं। Ultimately, अंतिम में at the time of creation, सृष्टि के समय में yeah, the earth was वो पानी के नीचे डूब गया. That is, it is under the water. ये पृथ्वी पानी के नीचे था। The Lord said, "Let the earth appear." अब परमेश्वर ने कहा कि भूमि दिखाई दे, It totally lost its form. क्योंकि उसका पूरा रूप खो गया था। Oh, it became void, useless. अब वो तो बेकाम हो गया था So उसका। now God has not created Satan. परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया। The name changed from Lucifer to Satan after Lucifer preferring his free will to rebel against God and thrown out. लूसीफर से शैतान कैसे बन गया है? जब लूसीफर ने फिर परमेश्वर का सिंहासन पर चढ़ना चाहता था, उसका विरोध उठ खड़ा, तब उसका नाम बदल गया। So three important things we have अभी seen. तक हम 3 महत्व बातें, मुख्य बातें हमने सुना है। What are they? कौन सी बातें? God did not create robots, परमेश्वर ने रोबो को नहीं बनाया। whether human beings or even the angels. God has created them with free will. मनुष्य जाति को या फिर स्वर्गदूत को बनाया है, वो अपने स्वयं इच्छा, स्वीय इच्छा से बनाया। And secondly, God has created angels with a purpose, दूसरी बात है, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को एक उद्देश्य से बनाया, mainly to worship and serve the Lord, और विशेष रूप से परमेश्वर की उपासना करने, उसको सेवा करने, and also to be the messengers to His children, और फिर अपने संतान को वो संदेश देने के लिए उनको बनाया, and to protect His children. और अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए। So that's why God has created the angels. इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया। But what God did not create Satan, the third thing we have seen. लेकिन परमेश्वर ने शैतान को तो नहीं बनाया है, तीसरी बात का। And fourthly, चौथी बात है, God gives people freedom to make choices. तो परमेश्वर ने लोगों को अपने चाहने के लिए, अपनी इच्छा से करने के लिए उनको अनुमति देता है, Yeah, He will give freedom, switch. और उनको स्वेच्छा को भी, स्वतंत्रता को भी देता है। So God creates human beings
But not murderers or liars or thieves. God created human beings, not murderers. परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया लेकिन हत्यारे को, धोखा देने वाला चोर को नहीं बनाया। But when a person chooses to murder some fellow, you cannot blame God for that. लेकिन जब एक व्यक्ति हत्या करने की चाहत होती है उसमें, तो इसके लिए हम परमेश्वर पर दोष नहीं ला So सकते। God created sinless human being. वो परमेश्वर ने पाप रहित मनुष्य को बनाया है। God created Adam in his own image. परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में आदम को बनाया है। Yeah, God's quality is holiness. और परमेश्वर की ये लक्षण है पवित्रता। And God created Adam also as a holy being. परमेश्वर ने आदम को भी एक पवित्र व्यक्ति बनाया, But Adam committed sin, लेकिन आदम ने पाप किया है disobeyed God. और परमेश्वर का अनाज्ञाकारी बन Today गया। somebody is murdering some other fellow. कोई जाकर किसी को हत्या करता है And somebody is lying before another fellow. और कोई जाता है किसी से झूठ बोलता है, Another fellow became a thief. एक और चोर बन जाता It है। is why everybody is not becoming thief. क्यों हर एक व्यक्ति चोर नहीं बनता Why है? everybody is not a murderer. क्यों हर एक व्यक्ति हत्यारा नहीं So बनता है? this fellow is using his free will to become a murderer. क्योंकि ये व्यक्ति जो अपनी स्वीय इच्छा है ना हत्या करने के लिए वो चाहता है, God has not made him murderer. लेकिन परमेश्वर ने उसको हत्यारा नहीं बनाया And his free will made him murderer. और इसकी जो स्वीय इच्छा थी उसको हत्यारा बना दिया। At one point of time in his life, he wanted to murder some fellow because reason may be anything. एक समय ऐसा एक व्यक्ति की हत्या करना चाहता था, वजह क्या है, कारण क्या हम नहीं जानते। You cannot blame God for तो that. इसके लिए आप परमेश्वर पे दोष नहीं लगा सकते। God has created human beings as murderers, then everybody must murder. यदि परमेश्वर ने मनुष्य को हत्यारा बनाता है तो हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य हत्यारा ही बन जाता है। So in a similar way, तो इसी प्रकार से we cannot blame God for somebody lying, somebody murdering, somebody robbing. कोई झूठ बोलता है, कोई धोखा, कोई चोरी करता है, कोई हत्या करता है, इसके लिए हम परमेश्वर पे दोष नहीं लगा सकते। Yeah, God has given you free will and you are deciding it. परमेश्वर ने आपको स्वीय इच्छा दिया है, वो अपने से आप निर्णय लेते हैं। Satan also did like that. शैतान भी बिल्कुल ऐसे ही किया है। Lucifer was given free will. लूसीफर को स्वीय इच्छा दी गई He है, rebelled against God. परमेश्वर के विरोध उठ खड़ा है। Out of pride, he wanted to occupy the seat of God. तो घमंड के वजह से वो परमेश्वर के सिंहासन पर चढ़ना चाहता था। And because of pride, he wanted to receive the worship from the other angels. उसमें घमंड थी, उसकी वजह से वो दूसरे स्वर्गदूतों से उपासना चाहता था। And Lucifer forgot that God is the creator and he is the creation. लूसीफर ने ये भूल गया था कि परमेश्वर सृष्टि करता है और फिर ये लूसीफर एक सृष्टि है। So that's why we cannot blame God for Satan. इसीलिए शैतान के लिए, शैतान के बारे में हम परमेश्वर पे दोष नहीं लगा सकते। Never say God created Satan. कभी ऐसा नहीं बोलना कि परमेश्वर ने शैतान को बनाया। It is not there in my Bible. नहीं नहीं, मेरे बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा है। Yeah, God created Lucifer. What all God creates, it is good. परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया, जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है उसको अच्छा ही बनाया है। It is for our good only. तो हमारे भलाई के लिए ही, अच्छे के लिए Earth बनाया। also is created to be inhabited by the people. पृथ्वी भी है ना, लोग, मनुष्य लोग इस पर बसने के लिए उसने बनाया है। So, brothers and sisters, तो भाइयों और बहनों, in this first part we have seen अभी हमने पहले भाग में ये बातों को सुना God है। has created Satan is a wrong statement. परमेश्वर ने शैतान को बनाया, ये बात गलत बात है। God created Lucifer is the right statement. परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया था, ये सही बात है। With much glory. और बड़ी महिमा से Oh, बनाया। he was going among the precious stones in the Garden of Eden. और अदन की वाटिका में वो घूमता था। But Lucifer, out of his own will, became Satan. लेकिन लूसीफर अपनी स्वयं इच्छा के अनुसार वो पाप में गिर गया, He became Satan. वो शैतान बन गया। And don't blame God for that. इसके लिए परमेश्वर को निंदा नहीं लगा सकते, दोष नहीं लगा सकते। Yeah, we are going to see a little bit detail in the second part. और फिर हम इन बातों के बारे में दूसरे भाग में और भी हम देखेंगे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय how पिता, many times, oh Lord, this question comes. कितने बार हमको ये प्रश्न आता है, But oh Lord, you have not created Satan. लेकिन प्रभु आप शैतान को नहीं You बनाया, have created Lucifer as a glorious being in heaven. अब तो लूसीफर को बनाया है, स्वर्ग में वो एक महिमामय बन You गया have है। given him wonderful position. एक अद्भुत तो प्रभु उसको स्थान भी दिया He था। was almost second in command in heaven. और फिर स्वर्ग राज में प्रभु जी वो अधिकार बनाने में, अधिकार करने के दूसरे नंबर में था। Next to God, thou hast given that place. और परमेश्वर के बाद वाले प्रभु पद को उस स्थान में उसको रखा है। Out of pride, using the free will,
he has fallen down. घमंड के कारण अपने स्वीय इच्छा का प्रभु इस्तेमाल करके वो गिर गया, So he became Satan. वो शैतान बन गया। Today we are calling him as a devil. आज प्रभु हम उसको शैतान करके बुलाते हैं। Devil, DEVIL, is the doctor of evil. हाँ प्रभु, ये तो बुराई का, पूरे बुराई का डॉक्टर है। So he is devil. प्रभु वो तो डेविल बन We गया call him as a deceiver. और उसको धोखेबाज बोल के Not बुलाते हैं। only he lost that throne, but he is deceiving the people not to go to the throne. केवल वो सिंहासन खो गया है और लोगों को भी उस सिंहासन पर जाने से धोखा देता So है। you have not created Satan. तो प्रभु आपने शैतान को नहीं बनाया। Help us to understand this. इन बातों को समझने में सहायता कीजिए। Help us to see more and more in the second part also. और दूसरे भाग में भी प्रभु और भी ज्यादा सीखने में सहायता कीजिए। In Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना को चढ़ाते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।